Hello everyone, welcome back to e-learning classes of your science subject. As you all know, we are continuing with the chapter 2 of our science subject, and name of our chapter is components of food. We all have completed explanation of this chapter till dietary fibers topic, which is on page number 13. And today we are going to continue the explanation on page number 14. So all of my dear students are requested to open your textbooks and come on page number 14 so that we can start with our remaining explanation. In our previous video, we learned that how and why water is important to our body, and in our today's video we are going to understand that is there any other source which provides water to our body. And for understanding that, we all have to look at activity 3. Activity 3 is take a tomato or a fruit like lemon, cut it into small pieces. Do your hands get wet while doing so? ओके आपको चेक करना है कि ऐसे और भी कोई सोर्सेस है जिससे हमारी बॉडी को पानी मिलता है. उसके लिए आपको क्या करना है, आपको या तो एक टोमेटो लेना है या फिर आप एक लेमन भी ले सकते हो, और फिर आपको उसे कट करना है और आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आपके हाथों में क्या कुछ पानी जैसा सब्सटेंस आया है, क्या आपके हाथ उसे कट करने पे गीले हुए हैं. Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? So you all have to carefully notice whenever your mother cuts vegetables or fruits, or she peels it, or she mash it out, do you find some water like substance in it? And you also have to find, is there any vegetable or fruit that does not contain amount of water in it. We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. This means हमने देखा है कि काफ़ी सारे फूड मटेरियल्स है जो खुद ही पानी कंटेन करते हैं, और उसके अलावा हमें खाना बनाने के टाइम पे भी काफ़ी सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसे बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है. सो येस, देयर आर मेनी सोर्सेज विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एंड रीड व्हाट इज़ मेंट बाय बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट क्या होता है वो हम अब समझेंगे. The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. मतलब जो खाना हम रोज़ खाते हैं उसे हम बोलते हैं डाइट, पर हमारी अच्छी ग्रोथ और हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, हमारी हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी रहता है, और वो न्यूट्रिएंट्स सही क्वांटिटी में होना भी बहुत ज़रूरी है. Not too much of one and not too little of the other. The diet should contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. Okay, here you all are told about what the balanced diet is. What is its definition? So, when we intake the nutrients or the food in our body in not much quantity, neither less, so that our body can get good amount of roughage and water, that is known as balanced diet. हमारी बॉडी में जितना ज़रूरी हो उतना ही हम न्यूट्रिएंट्स डालें, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं, और जितना पानी हमें चाहिए हम उतना पानी का इंटेक रखें. दैट इज़ नोन एज बैलेंस्ड डाइट. उसको हम बोलते हैं कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड है. Do you think that people of all ages need the same type of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? इसका मतलब है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं उन सबकी डाइट सेम होती है, और क्या ऐसा भी है जो लोग फिज़िकल काम ज़्यादा करते हैं उनकी जो डाइट होती है वो उनके काम पे डिपेंड करती है.
Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. So you all are asked to prepare chart whatever you eat. You all have to prepare a chart of week, and then you have to check that whether the nutrients we studied about you are consuming the same or not. Moving further, pulses, groundnuts, soya bean, sprouted seeds, that is mung and Bengal gram, fermented foods, that is South Indian foods such as idlis, a combination of flours, that is misi roti, thepla, made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. यहाँ पे आपको ऐसे फूड आइटम्स के नाम दिए गए हैं जिसे हम खा के हमारी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं बिना ज़्यादा एक्सपेंस किए, बिना ज़्यादा खाने की मटेरियल पे खर्चा किए. और वो सब क्या है, आप पल्सेस खा सकते हो, ग्राउंडनट खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो, मूंग, चना, स्प्राउटेड वो खा सकते हो. फिर आप फर्मेंटेड चीज़ें जैसे कि इडली है, ढोकला है, ये सब खा सकते हो. अलग अलग आटे से बनी हुई रोटी है, थेपला है, ये सब खा सकते हो. बनाना खाओ, स्पिनच खाओ, सत्तू, गुड़, दैट इज़ जैगरी खा सकते हो. और ये सारे फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं. Eating the right kind of food is not enough. It should be cooked properly so that its nutrition are not lost. खाली सही खाना खाना वो ज़रूरी नहीं है, दैट इज़ नॉट इनफ. बट जो खाना बन रहा है, जो खाना कुकड हो रहा है, वो ज़रूरी है कि उसे प्रॉपरली कुक किया जाए कि उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो गुम ना हो जाए, चले ना जाए. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? क्या आपको पता है कोई कोई ऐसे फूड आइटम्स है जिसे हम प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम बनाते हैं, उस टाइम पे उसके न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं उसमें से. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, इट मे रिज़ल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स. मतलब अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है उनको काटने के बाद या उनको छीलने के बाद, उनको पील करने के बाद अगर उन्हें धोया जाए तो उसके जो वाइटामिन्स है वो उसमें से वॉश आउट हो जाते हैं, चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं. द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन्स वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट देयर स्किन कंटेन्स वाइटामिन इन इट. बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिसमें काफ़ी सारे मिनरल्स और वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम वाइटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर कुकिंग राइस, हम चावल बनाने से पहले उसे धोते हैं. बट इफ़ वी वॉश इट मेनी टाइम्स और इफ़ वी रिपीट वॉशिंग इट, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स या फिर वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सब उसमें से वॉश आउट हो जाते हैं. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. हम सबको पता है कि हम अगर खाना पका के खाते हैं तो वो हमें डाइजेस्ट करने में भी ईजियर होता है और उसका टेस्ट भी फूड का एकदम अच्छा और अलग हो जाता है कंपेयर टू रॉ मटेरियल. अब आप चावल कच्चे खाओगे वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे कंपैरेटिवली अगर आप उसे पका के खाओगे, दैट इज़ कुक्ड राइस. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. जो कुकिंग करते हैं, जब हम कुक करते हैं उससे काफ़ी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो चले जाते हैं, हमें नहीं मिलते हैं, हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं और उससे हमारी बॉडी को लॉस होता है. Many useful proteins are considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. This means ऐसे काफ़ी सारे प्रोटीन्स और मिनरल्स है जो लॉस्ट हो जाते हैं, जो गुम हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा पानी उस खाने को पकाने के लिए यूज़ करें और बाद में वो पानी को हम फेंक दें. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. जब हम खाना बनाते हैं और जिस चीज़ में विटामिन सी प्रेजेंट होता है वो हीट की वजह से बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है.
Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? That means that if we include raw vegetables or fruits in our diet, would it not be appropriable? मतलब अगर हम हमारी डाइट में कच्चे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाएंगे तो क्या वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा? Poja thought that fats would be the best foods to eat all the time. नीचे जिस बॉय की पिक्चर दी गई है आपको, उसका नाम बोजो है और वो सोचता है कि उसके लिए फास्ट फूड ही सबसे बेस्ट फूड है जो उसे हमेशा खाना चाहिए. A katori, that is bowl, of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats. वो ऐसा सोचता था कि एक कटोरी या दैट इज़ एक बोल अगर वो फैट का खाता है तो उसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कंपैरेटिव टू कार्बोहाइड्रेट्स. सो ही एट नथिंग, पर तो फिर वो कुछ खाता ही नहीं था, सिर्फ फैट फूड्स खाता था. और उसमें भी वो क्या खाता था? फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा. Fat foods में he used to eat fried foods. He liked samosa, he liked puri, he liked malai, sweet, rabdi, peda and so on. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity. आपको क्या लगता है बोजो सही था? क्या ये फ़ैट फूड खाना अच्छा होता है? सो द आंसर इज़ नो, नॉट एट ऑल. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट. जो फैट फूड है, जो फूड फैट रिच फूड है, उसे ज़्यादा खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है. पहले तो हम उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर हम रोज़ तला हुआ खाना खाएंगे, स्वीट खाएंगे, रबड़ी, मलाई, समोसा, ये सब हम अगर रोज़ खाएंगे तो हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड लास्टली वी हैव टू सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी. हमारी हेल्थ बढ़ जाएगी, हमारा वेट गेन हो जाएगा और हमें फिर उससे डील करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. So I hope you all have understood the explanation of today's topic, which was balanced diet and other sources which provides water to our body. So students, the only left out topic from our chapter 2 is deficiency diseases, which we are going to cover in our next video. Till then, you all have to read till topic balanced diet, which is on page number 14 as well as on page number 15. We will meet very soon. Till then, take care, keep reading, keep learning, stay home, stay safe. Thank you.